Okay, students, on last lecture we were discussing epsilon and Fa. So in epsilon and Fa, we have discussed its concept, its formal definition, and how it is different from the normal NFA. So we have seen the transition function of NFA and epsilon NFA. So both are similar. The only thing is we have to consider the transitions over the epsilon also in case of epsilon NFA. So nothing else is different from the NFA. Then we have taken one example of the language L equal to 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk, and we have made an NFA for it, and then we have made an epsilon NFA for it. And through this example, I have tried to show you that epsilon NFA further simplifies the design of machines. Okay, so this was one thing, and the second thing was that epsilon NFA also represent the same language which is represented by some NFA or some DFA. So ultimately epsilon NFAs also represent the regular languages. So no additional representation power is added through this relaxation in the machine, that is inclusion of the epsilon transitions. Then we have seen the concept of epsilon closure, E-close, okay, and we have found the then we have discussed how we can find the epsilon closure of a given state. Okay, so this process we have found, and finding epsilon closure is important because it has impact on the definition of the acceptance. Normal NFAs, our input string gets accepted when we process input string fully from the start state and we reach to a set of some states. Okay, among this set of states which is reachable on the processing of the input string, if we have any final state in it, then our string is accepted. So this is the case of normal NFA. But in case of epsilon NFA, because epsilon transitions are also present there, so we also have to look at not only the set reachable from the start state, but the epsilon closure of the set reachable from the start state. So either if the set which is reachable from the start state contains an final state, then also your string is accepted. Suppose it does not contain any final state, but its epsilon closure contains a final state, then also we say that our string is accepted. So rather than only the state which are reachable, we also have to look at their epsilon closure. So this was the effect which we have, this was the effect of epsilon closure over the acceptance. So this was all which we have discussed up till the last lecture. Now today we come to the new topic, that is the equivalence of epsilon NFA and NFA. Okay, so we will try to prove that corresponding to every epsilon NFA, there exists a NFA, means both are NFA, but this is an NFA which is containing epsilon moves, and we wish to convert this NFA to a NFA which does not contain any epsilon moves. Okay, so what we'll try to do, we'll try to eliminate epsilon transitions from the epsilon NFA one by one. So each time we will pick one epsilon transition and we will try to remove it. So there is a three-step process for performing it. Suppose we want to eliminate epsilon transition from the state Q1 to Q2. Suppose means there is some situation, something like this in your NFA. You are at the Q1 state, and from Q1 there exists an epsilon transition to another state, that is the Q2, and we wish to remove this epsilon transition. So what we have to do to remove this epsilon transition so that the language of the machine does not get affected, means language machine की वही रहे और हमारा ये transition remove हो जाए, is it? So what we will do, we will copy all the transitions of Q2 state, means we'll look at कि Q2 state के जो transitions हैं वो कहाँ जा रहे हैं. Suppose on A, on B, these are the input symbols suppose, or epsilon suppose, ठीक है. तो symbols पे transitions कहाँ जा रहे हैं, epsilon पे उसके transitions कहाँ जा रहे हैं, those all transitions we will consider. So we'll copy all the transitions of Q2 state to the Q1 state. Okay, and remove the epsilon transition from Q1 to Q2, means we will remove this transition and
and after removal of this transition, we will copy all the transitions of Q2 to Q1. Means Q2 से A पर जहां भी हम जा रहे होंगे, अब हम Q1 से A पर भी वहां जाएंगे. Is it? Q2 से B पर हम जहां जा रहे होंगे, अब Q1 से B पर भी हम वहां जाएंगे. Q2 से एप्सिलॉन पे हम जहां जा रहे होंगे, वहां से वहां पर हम Q1 से भी एप्सिलॉन लेकर के जाएंगे. तो इस तरह से यानी कि Q2 के सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो हम क्या करेंगे, Q1 पर कॉपी करेंगे, और जो Q1 से Q2 के बीच का एप्सिलॉन ट्रांजिशन था वो हम रिमूव कर देंगे. इज इट? तो इस तरह से हमें Q1 के कुछ नए ट्रांजिशन और मिल जाएंगे, जिससे हमारी लैंग्वेज इफेक्ट नहीं होगी. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर आप Q1 पे हैं, then without reading anything from the input you can reach to the Q2, और उसके बाद आपने इनपुट से कुछ भी लेकर के या इनपुट से कुछ भी नहीं लेकर के अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशन फॉलो कर रहे हैं, तो आप कुछ और स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं. तो अगर आप Q1 पे हैं, तो यानी कि, और Q1 से Q2 के बीच एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, तो यानी कि जो काम आप Q2 से कर सकते हैं वही काम आप Q1 से भी कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉपिंग ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ Q2 स्टेट इनटू द Q1 स्टेट also. I hope this point is clear to the class. This is important because this is the key to convert, this is the key to remove the epsilon transitions. Class, this point is clear? Yes, sir. Okay. Now we come to the second step of the process. If Q2 is a final state, then mark Q1 also as the final state. ये तो बहुत simple है. Suppose Q1 से Q2 के बीच में मेरा एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन है और Q2 मेरी फाइनल स्टेट है. इज इट? अगर ऐसी सिचुएशन है, तो यानी कि अगर मैं किसी इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करके Q1 तक पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, तो और मेरा स्ट्रिंग वहीं पे फिनिश हो गया, तो आप देखिए मेरा स्ट्रिंग नॉर्मल NFA के केस में तो रिजेक्ट करता, क्योंकि Q1 मेरी फाइनल स्टेट नहीं है. लेकिन चूंकि यहाँ मेरा एप्सिलॉन NFA है और Q1 से Q2 के बीच एप्सिलॉन ट्रांजिशन है और Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, तो अगर मैं Q1 पे पहुंच गया तो इसका मतलब क्या है, विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट आई कैन रीच टू Q2 एज वेल. तो अगर मैं स्ट्रिंग के फिनिश होने पे Q1 पे था, तो मैं स्ट्रिंग के फिनिश होने पर Q2 पर भी होऊंगा. इज इट? सो दैट्स व्हाई माय स्ट्रिंग विल गेट एक्सेप्टेड. ओके, सो अगर मैं इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर इस Q1 स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट नहीं बनाया, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रिंग यहाँ आके रिजेक्ट कर जाएगा, जबकि एप्सिलॉन NFA में एक्सेप्ट करता. सो दैट्स व्हाई आई विल व्हेन आई विल रिमूविंग दिस एप्सिलॉन ट्रांजिशन, आई विल आल्सो मार्क दिस Q1 एज द फाइनल स्टेट. आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर. क्लास? Yes, sir. Okay. In the similar manner, the third point, if Q1 is a start state, then mark Q2 also as the start state. Okay. यानी कि मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये Q1 मेरी क्या है, स्टार्ट स्टेट है, और Q1 से मेरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन है जो कहाँ गया है, Q2 पे गया है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब Q1 के कुछ और ट्रांजिशन भी हो सकते हैं कि ऑन A आई विल बी गोइंग समवेयर या ऑन अदर सिंबल्स. ओके, तो अब क्या है, यानी कि मैं Q1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे सिंबल्स मिलते हैं तो मैं इधर की तरफ जाता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इनपुट से कुछ भी रीड नहीं करता और सीधे कहाँ पहुँच जाता हूँ, Q2 से. उसके बाद Q2 के ट्रांजिशंस को फॉलो करना शुरू करता हूँ कि Q2 ऑन A वेयर इट गोज. इज इट? तो यानी कि एक तरह से मैंने क्या किया कि मैंने अपने इनपुट के स्टार्टिंग में Q1 स्टेट से कुछ भी रीड नहीं किया, सीधे Q2 पे पहुंच गया. तो यानी मैंने अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कहां से स्टार्ट की, Q2 से स्टार्ट की. इज इट? और मैं चाहता तो Q1 से भी स्टार्ट कर सकता था. अगर मैं इनपुट से कुछ रीड करता तो Q1 से भी स्टार्ट कर सकता था, और अगर मैं चाहूँ तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के Q2 पे पहुंच जाऊं और फिर वहां से इनपुट को रीड करना स्टार्ट करूं. तो एक तरह से Q1 के साथ साथ Q2 से भी मैं अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकता हूं. तो इन इफेक्ट Q2 इज ऑल्सो द स्टार्ट स्टेट. Q2 is also the start state. That's why this point says that if Q1 is a start state, then mark Q2 also as the start state. This point is clear? Class? Yes, sir. Okay. But इस पॉइंट से एक प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम ये हो गई, अभी तक हमने NFA की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें स्टार्ट स्टेट सिंगल होती है. ओके, स्टार्ट स्टेट क्या होती है, सिंगल स्टार्ट स्टेट. इज इट? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मल्टीपल स्टार्ट स्टेट हो जा रही है. इज इट? तो ये डेफिनेशन के हिसाब से कहीं गलत तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है.
एक्चुअली एनएफए की डेफिनेशन दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहली तो डीएफए की हेल्प से, जैसा कि हमने किया था कि हमने डीएफए को क्या किया, रिलैक्स कर दिया। तो डीएफए में चूंकि हमारी सिंगल स्टार्ट स्टेट होती है, क्योंकि डीएफए हमारा डिटर्मिनिस्टिक होता है, उसमें हर चीज फिक्स्ड होगी, तो हम कहां से शुरू करना है ये भी फिक्स्ड होगा, इज इट। जबकि एनएफए हमारा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म मींस वी में कम इनटू ए सिचुएशन जहां पे कि मशीन ये कंफ्यूज हो जाए कि उसको अल्टरनेटिव पाथ्स में से किस पाथ पे मूव करना है। सो अगर हमारी मल्टीपल स्टार्ट स्टेट हम अलाउ करते हैं अपने एनएफए में, तो एक तरह से क्या है, इट इज ए नॉन डिटर्मिनिज्म एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। नॉन डिटर्मिनिज्म एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट है, Q1 और एक Q2। तो अब अगर मुझे अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, तो मुझे स्टार्टिंग में नॉन डिटर्मिनिज्म मिल रहा है कि मैं Q1 से स्टार्ट करूं या Q2 से स्टार्ट करूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एनएफए में जहां भी नॉन डिटर्मिनिज्म आता है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं, तो वहां हमारी मशीन क्या करती है, एक्चुअली ऑल दी पाथ्स इट फॉलोज। तो सिमिलरली यहां भी क्या करेगा, वो Q1 से भी स्टार्ट करेगा इनपुट को प्रोसेस करना, और Q2 से भी स्टार्ट करेगा इनपुट को प्रोसेस करना। अगर मान लीजिए Q1 से इनपुट को प्रोसेस करने पर फेल्योर मिलता है, लेकिन Q2 से इनपुट को प्रोसेस करने पे सक्सेस मिलती है, देन माय स्ट्रिंग विल बी सक्सेसफुल। और अगर बाई चांस Q1 Q2 दोनों से ही मेरा स्ट्रिंग को प्रोसेस करने पे फेल्योर मिलता है, देन ओनली माय स्ट्रिंग विल गेट रिजेक्टेड। सो दिस इज नथिंग बट द नॉन डिटर्मिनिज्म एट द पॉइंट ऑफ द स्टार्ट स्टेट। Okay, so this is allowed in case of NFA. Actually, we have not discussed one more general machine that is called the transition system. So मैं केवल यहाँ नाम ले रहा हूँ उसका, ट्रांजिशन सिस्टम। ये ट्रांजिशन सिस्टम क्या है, ये भी डीएफए की तरह के ही हमारी मशीन्स हैं, बट ट्रांजिशन सिस्टम क्या है, मोर रिलैक्स्ड मशीन्स हैं। इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल स्टार्ट स्टेट भी हो सकती हैं, इसमें जो है एक ही सिंबल पे मल्टीपल ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, नॉट ओनली ऑन ए सिंगल सिंबल बट ऑन वर्ड्स यू कैन डू दी ट्रांजिशंस। अभी तक हमने अपने एनएफए पढ़ा है, डीएफए पढ़ा, उसमें हमारे ट्रांजिशन किस पे होते थे, केवल एक सिंगल सिंबल पे, सपोज ए पर। मान लीजिए मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है BAA, तो मैं केवल एक बार में B रीड करता था, फिर अगली बार में A रीड करता था, फिर अगली बार में A रीड करता था। व्हाइल इन ट्रांजिशन सिस्टम यू कैन साइमल्टेनियसली रीड द कंप्लीट वर्ड, सपोज BAA, एंड यू कैन चेंज द स्टेट। Okay, so this is a more general machine, so that is not in your syllabus, so that's why we are not discussing. तो अगर हम ट्रांजिशन सिस्टम की तरफ से एनएफए को बनाए, सो अगर ट्रांजिशन सिस्टम के टर्म्स में देखें तो एनएफए इज ए मोर रेस्ट्रिक्टेड मशीन। सो हम उस पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ट्रांजिशन सिस्टम में जब सिंगल स्टेट होगी तब हम कहेंगे उस ट्रांजिशन सिस्टम को इट इज एन एनएफए। सो दैट्स वाई एनएफए जो है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, तो मल्टीपल स्टेट भी हो सकते हैं, इज इट। लेकिन वो सारे के सारे सिस्टम जिसमें मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हैं, उनको हम सिंगल स्टार्ट स्टेट वाले सिस्टम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि आप परफॉर्म करें। तो इन अवर केस, चूंकि हमने अपने एनएफए की डेफिनेशन किस तरह से ली है कि उसमें एक सिंगल स्टार्ट स्टेट ही होती है, तो हम इस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे, इज इट। मैंने आपको स्टेप बता दिया है, बट एक्चुअली वी विल नॉट परफॉर्म दिस स्टेप। अब आप कहेंगे कि इससे प्रॉब्लम होगी कि जो है भाई मैं अगर Q1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और Q2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सपोज देयर आर 2 फाइनल स्टेट्स। तो इसमें आप देखिए, जब मैं इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर रहा हूँ, और बिकॉज Q1 इज स्टार्ट स्टेट, आई एम ऑल्सो मार्किंग Q2 स्टेट, Q2 एज द स्टार्ट स्टेट। बट चूंकि मैंने आपसे कहा ये स्टेप परफॉर्म नहीं करना है, तो आप Q2 को स्टार्ट स्टेट मार्क नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में, इस स्टेप में आप क्या कर चुके हैं, Q2 के सारे ट्रांजिशन Q1 पर कॉपी कर चुके हैं। तो यानी कि जो काम आप Q2 से कर सकते थे, वो अब आप Q1 से भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इस स्टेप को परफॉर्म करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए Q1 से A पर जा रहे थे हम Q3 स्टेट पर, और Q2 से A पर हम जा रहे थे Q4 स्टेट पर। तो जब हमने Q1 से Q2 के बीच का एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव किया होगा, तो सबसे पहले तो हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया होगा। पहला स्टेप क्या कहता है, कॉपी ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द Q2 स्टेट टू द Q1 स्टेट। यानी Q2 अगर A पर Q4 पे जा रहा था, तो अब Q1 भी A पर Q4 पर जाएगा। तो आप देखिए एनएफए तो बन जाएगा ये, क्योंकि Q1 से A पर ऑलरेडी एक ट्रांजिशन आपके पास है Q3, बट आपने क्या किया, Q2 की वजह से
एक A पर ट्रांजिशन Q4 और ऐड किया, इज इट? सो यानी कि जो काम आप Q2 से कर सकते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के आप Q2 पे जाते और Q2 से स्टार्ट करते, वहां से A फॉलो करते और Q4 पे पहुंचते, वो काम आप डायरेक्टली Q1 से भी कर सकते हैं। तो अगर आप Q2 को स्टार्ट स्टेट नहीं भी मार्क कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि तीसरा स्टेप हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप दो स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप क्या है? कॉपी ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ Q2 स्टेट टू Q1 स्टेट एंड रिमूव द एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 टू Q2। और दूसरा स्टेप क्या है कि अगर Q2 आपकी फाइनल स्टेट है तो मार्क Q1 ऑल्सो एज द फाइनल स्टेट। तीसरे पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको हम खत्म कर देते हैं, इज इट? So this will not perform. It is clear, class? So we have only two-step process to remove an epsilon transition. Clear होगा कि नहीं? अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो आप इन दो स्टेप्स को याद रखिए, क्योंकि इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। सिंपली आपको अगर स्टेप याद है तो इन स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका कन्वर्जन करेक्ट होगा। इज इट क्लियर और नॉट, क्लास? Yes, sir. Okay. So now we are taking the same example. Okay. अब इस एग्जाम्पल को भी अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कल जो डिजाइन किया था उससे थोड़ा डिफरेंट डिजाइन किया है। लैंग्वेज वही है, L इज इक्वल टू 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक। कल जब मैंने डिजाइन किया था तो स्टार्ट स्टेट Q0 का 0 पर इटसेल्फ ट्रांजिशन, एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन, Q1 1 का ट्रांजिशन सेल्फ पे, फिर एप्सिलॉन ट्रांजिशन, फिर Q2 का ट्रांजिशन, Q2 का 2 पे ट्रांजिशन सेल्फ पे, एंड Q2 इज फाइनल स्टेट। मेरे कल वाले डिजाइन में मैंने Q1 भी फाइनल स्टेट बनाई थी, Q0 भी फाइनल स्टेट बनाई थी। इज इट? दैट डिजाइन इज आल्सो करेक्ट एंड दिस डिजाइन इज आल्सो करेक्ट। कल बनाते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने जो है मुझे हम जो एप्सिलॉन NFA बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? जिससे कि हम कम से कम ट्रांजिशंस बना सकें। हमारा जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है उससे हमारा डिजाइन सीधे सीधे फॉलो कर रहा हो, आसानी से हम डिजाइन कर सकें। और उसमें हम क्या करते थे, हम केवल जो जरूरी ट्रांजिशंस थे वो बनाते थे, केवल जो जरूरी स्टेट थी वो बनाते थे। तो अगर मैं इन दोनों स्टेट्स को फाइनल स्टेट ना भी बनाऊं तब भी मेरा डिजाइन ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे केवल 0 एस्ट्रिक एक्सेप्ट कराना है तो ऑल जीरोज विल कंज्यूम्ड हियर इन द Q0 स्टेट। अब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ एंड हो रहा तो आप कहोगे ये तो रिजेक्ट होगा क्योंकि ये नॉन फाइनल स्टेट है। लेकिन आपके पास क्या है? एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके आप Q1 पे आ सकते हैं, फिर अगला एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के आप Q2 पे आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली स्ट्रिंग फिनिश आपका चाहे भले Q0 में हो रहा है बट यू कैन ऑलवेज रीच टू दी Q2। ओके, सो आप अपने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं। देयर एग्जिस्ट वन वे बाय विच यू कैन गेट योर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। और मैंने आपसे कहा था जितने भी फेलियोर्स हैं वो सब हमें इग्नोर करने हैं इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, चाहे वो नॉर्मल NFA हो चाहे वो एप्सिलॉन NFA हो। जितने भी फेलियोर्स होंगे वो सब हम इग्नोर करेंगे, और अगर एक भी सक्सेस है, एक भी तरीका है हमें सक्सेस पे पहुंचने का, तो उस तरीके को हम सही एज्यूम करेंगे और अपने स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड बताएंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस डिजाइन एंड द डिजाइन व्हिच आई हैव मेड यस्टरडे बोथ आर सिमिलर, both are equivalent. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. So now I have made a design like this for this language 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk. अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को रिमूव करूंगा, यानी कि वापस इसको NFA में कन्वर्ट करूंगा। अभी DFA की बात नहीं कर रहा हूँ, NFA में ही कन्वर्ट करूंगा, बट आई वांट इन माय NFA देयर शुड बी नो एप्सिलॉन ट्रांजिशन। मुझे एप्सिलॉन ट्रांजिशन से थोड़ी दिक्कत महसूस होती है कि भाई एप्सिलॉन ट्रांजिशन से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई यहाँ खत्म हुआ लेकिन यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज and many of the possibilities we are not able to suppose properly examine. Okay, so what we want कि इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन ना हो जिससे कि हम बहुत सारी अनफोर्सीन पॉसिबिलिटीज पे ना जाएं। तो मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करना चाहता हूँ। तो जब भी आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करें हमेशा सबसे पहले इसको एक ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करें। ओके, आपने ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया, देखिए Q0 on 0 to Q0 on 1 it is 5। देखिए 1 पे 1 और 2 पे इस पे से Q0 से कोई ट्रांजिशन नहीं है तो 1 और 2 पर 5, और एप्सिलॉन पे एक ट्रांजिशन है जो Q1 पे जा रहा है। सो एप्सिलॉन पे जो ट्रांजिशन है वो Q1 पे आ गया। इज इट? सिमिलरली Q1 का देख लीजिए, 0 पे और 2 पर 5, तो 0 पे 5 2 पे 5। देखिए 0 और 2 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, 1 पे इटसेल्फ पे ट्रांजिशन है तो Q1 आ गया। और एप्सिलॉन ट्रांजिशन है Q2 पे, तो एप्सिलॉन के केस में आपका Q2 पे आ गए। इसी तरह से Q2 के ट्रांजिशन लिख लिए, 0 और 1 पर 5, और एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी इससे कोई बाहर नहीं जा रहा तो एप्सिलॉन पर भी 5, तो 0 1 और एप्सिलॉन पर 5, और 2 पर इटसेल्फ Q2। सो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल ऑफ
एप्सिलॉन NFA। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने DFA अपने नॉर्मल NFA की ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसी में यहाँ चेंजेस करता जाऊंगा। मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए Q0 Q1 इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करना है। ओके, ये मुझे कैसे पता चलेगा Q0 Q1, मेरे पास एक ही एप्सिलॉन ट्रांजिशन है यहाँ पे Q0 से Q1, तो एप्सिलॉन पे क्या, सपोज इस ट्रांजिशन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने रिमूव कर दिया इस ट्रांजिशन को। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि Q0 से Q1 पे था ये ट्रांजिशन, ऑन एप्सिलॉन देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम Q0 टू Q1, सो Q0 मेरी पहली वाली स्टेट हो गई और Q1 मेरी बाद वाली स्टेट हो गई, इज इट। तो अब इसको मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, Q1 के जितने भी ट्रांजिशंस हैं वो कहाँ कॉपी करने हैं, Q0 पे कॉपी करना है, इज इट। तो अब मैं Q1 के ट्रांजिशन देखता हूं, तो मुझे कौन सी रो देखनी पड़ेगी, ये वाली रो देखनी पड़ेगी, इज इट, ये वाली रो देखनी पड़ेगी। अब Q1 रो में देख रहा हूँ, 0 पे इसका ट्रांजिशन क्या है, कोई है ही नहीं, यानी कि Q1 का 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो यानी Q0 पे 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा। जो इसका अपना ट्रांजिशन था 0 पर Q2 इटसेल्फ, केवल वही बना रहेगा। ऑन 1 Q1 का 1 पे ट्रांजिशन है Q1 पे। ओके, तो अब ये जो है यहाँ पे Q0 पे 5 था ट्रांजिशन, तो 5 था, तो अब लेकिन ये वाला ट्रांजिशन Q1 वाला ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये 5 नहीं रह करके अब क्या हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, इज इट। उसके बाद 2 पे देखेंगे, 2 पे इसका भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसका भी कोई ट्रांजिशन नहीं, तो नहीं Q0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा, लेकिन Q1 का एप्सिलॉन पे ट्रांजिशन है Q2 पे। अब इसका एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो मैंने खत्म कर दिया था, तो ये तो खत्म हो गया था, लेकिन अब Q1 के इस ट्रांजिशन की वजह से यहाँ एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q2, यहाँ क्या आ जाएगा, Q2, यानी कि मैंने एक ट्रांजिशन रिमूव किया Q0 से Q1 जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन था, मगर अगला ट्रांजिशन एप्सिलॉन पे क्रिएट हो गया जो कि Q0 से Q2 पे आ रहा है। एक तरह से अगर आप इसे ग्राफ में देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, Q0 से Q1 का ये वाला जो ट्रांजिशन था एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इसको रिमूव किया। इसके लिए मुझे क्या करना था, Q1 के ट्रांजिशन कॉपी करने थे Q0 पे, तो Q1 का ट्रांजिशन एक तो 1 पे है, तो ये 1 वाला ट्रांजिशन कहाँ आ रहा है, Q1 पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस ट्रांजिशन को कॉपी किया Q0 से, तो Q0 से Q1 पे मैं एक ट्रांजिशन बनाऊंगा विद द सिंबल 1, तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 सिंबल पे एक ट्रांजिशन बना लिया। तो मैंने अभी इसको रीड्रॉ नहीं किया, एक तरह से आप इसको ये कर लीजिए, दिस ट्रांजिशन आई हैव ड्रॉन ऑन 1, सो Q1 पे 1 से आप Q1 पे ही जा रहे थे, तो Q0 से भी अब आप 1 पे Q1 पे ही जाएंगे, सो दिस ट्रांजिशन यू हैव कॉपीड, तो जो आपने ये बनाया एक तरह से ये यहाँ आपने कॉपी किया। दूसरा क्या था, Q1 से एप्सिलॉन पे Q2 जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, Q0 से एप्सिलॉन पे Q2 चले गए, ये ट्रांजिशन मींस Q1 के जो दोनों ट्रांजिशन थे, एक 1 वाला और एक एप्सिलॉन वाला, ये आपने कहाँ कॉपी कर दिए, Q0 पे, और Q0 के अपने ट्रांजिशन जो थे वो एज इट इज रहे, केवल कौन सा ट्रांजिशन हटेगा Q0 का, जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। दिस इफेक्ट इज क्लियर। तो मैंने एक ट्रांजिशन हटाया, मगर उस एक ट्रांजिशन के हटने से एक ट्रांजिशन और क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको भी हटाएंगे। क्लियर है क्लास, अप टिल नाउ इट इज क्लियर और नॉट क्लास? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम अगले उसको लेते हैं। सपोज अब यही वाला जो जनरेट हुआ हमारा, ये वाला जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन, मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजिशन को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके स्टेट को खत्म करता हूँ। अब मैं सपोज इस Q2 वाले को रिमूव करना चाह रहा हूँ, जब मुझे इस Q2 वाले को रिमूव करना है, एक तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाले को रिमूव करना चाहता हूँ। अब इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच है, Q0 से Q2 के बीच है, एक तरह से Q0 से Q2 के बीच था ये। तो यानी कि अब मुझे Q2 के ट्रांजिशन कहाँ कॉपी करना है, Q0 पे कॉपी करना है। Q2 के ट्रांजिशन कौन से हैं, Q2 का केवल एक ही ट्रांजिशन है 2 पे, जो कि इटसेल्फ पे आ रहा है, तो मैं वही ट्रांजिशन क्या है, यानी कि Q0 से Q2 पे एक ट्रांजिशन मैं जो है, ये जो मैंने अभी हटाया था, मैं इसको रीड्रॉ नहीं कर, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, ग्रीन। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, Q0 से Q2 पे मैंने एक ट्रांजिशन 2 पे बना दिया, इज इट। अब आप देखिए यहाँ मैं क्या, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, Q0 पे Q2 का ट्रांजिशन देख रहा हूँ, देखिए ये 5 था, तो यानी कि यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये 5 था Q2 का ट्रांजिशन, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, Q1 था तो Q1 नहीं रहेगा। यहाँ Q2 है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये Q2 कहाँ कॉपी होगा, इस जगह पे कॉपी होगा। तो अब ये 5 था, अगर मान लीजिए यहाँ Q1 होता तो Q1 Q2 आ जाता, लेकिन अब ये 5 है, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, इट विल बी Q2।
तो यहाँ ये क्या आ गया, Q2 आ गया, और ये आपने खत्म कर दिया था, यानी कि ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन खत्म हो गया। अब चूंकि इसका कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं था, ये भी फाई था, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ गया, यानी कि ये क्या हो गया, फाई हो गया। इज इट क्लियर है? तो इस तरह से मैंने ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी रिमूव कर दिया। अब मेरे पास एक और एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, दैट इज Q1 से Q2, ये वाला ट्रांजिशन Q1 से Q2। ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इस ट्रांजिशन को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैंने इस ट्रांजिशन को रिमूव कर दिया। अब ये ट्रांजिशन किसके बीच में, Q1 से Q2 के बीच में। तो Q2 के जितने भी ट्रांजिशन हैं वो कहाँ कॉपी होंगे, अब Q1 पे कॉपी होंगे। तो कर दीजिए Q2 के ट्रांजिशन Q1 पे कॉपी। देखिए यहाँ तो फाई है, तो ये तो फाई रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फाई है और ये Q1 है, तो Q1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये फाई है और ये Q2 है, तो अब ये यहाँ से हट करके ये ट्रांजिशन यहाँ कॉपी हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, Q2, और यहाँ फाई था और ये मैंने हटाया ही था, तो यहाँ फाई ही रहेगा, फाई हो जाएगा। इज इट? तो अब मैंने क्या किया, Q2 के ट्रांजिशन किस पे कॉपी किए, Q1 पे। ओके, तो मैंने क्या किया, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो हटाया था, इस ट्रांजिशन को यहाँ मैंने कॉपी कर दिया 2 पे। इज इट? तो इस तरह से ये मेरे, आप देखिए एप्सिलॉन वाला जो मेरा कॉलम है वो पूरा पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, फाई 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 फाई, यानी अब एप्सिलॉन पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो यानी कि इस कॉलम को मैं रिमूव कर सकता हूँ। और जो कुछ भी मेरा ये बचा, ये मेरी क्या है, मेरी NFA की टेबल है। ये क्या है, मेरी NFA की टेबल है। अब इसमें मैंने एक चीज जरूर छोड़ गया हूं, जो अभी तक मैंने हमेशा इस पे क्या है, स्टेप 1 परफॉर्म किया, स्टेप 2 कहीं परफॉर्म नहीं किया। इस पे क्या नहीं परफॉर्म किया, स्टेप 2 नहीं परफॉर्म किया। अब देखिए जब Q0 और Q1 हटाया था मैंने, तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि Q1 मेरी फाइनल स्टेट नहीं थी। लेकिन जब Q0 से Q2 हटाया था, तो ये मेरी फाइनल स्टेट भी थी। इज इट? सो दैट्स वाई मुझे Q0 को भी फाइनल स्टेट मार्क करना था, तो वो मैं उस टाइम पे छोड़ गया, अब कंप्लीट कर लेता हूँ। सिमिलरली जब मैं Q1 से Q2 हटा रहा था, तो चूंकि Q2 मेरी फाइनल स्टेट भी थी, तो इसलिए मैं Q1 को फाइनल स्टेट भी मार्क करता, यानी Q0, Q1, Q2 ये तीनों मेरी फाइनल स्टेट हो गई, और ये मेरी फाइनल उसकी NFA की टेबल आ गई। अब इस टेबल को अगर आप ध्यान से देख लें, यानी कि मैंने क्या किया, एक तरह से Q1 को भी फाइनल स्टेट बनाया और Q0 को भी फाइनल स्टेट बनाया। सो ये मेरा फाइनल जो है NFA आ गया। मैं इसको एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूँ। देखिए Q0, इट इज स्टार्ट एज वेल एज फाइनल स्टेट। ऑन 0 you are staying here, okay? On 1, देखिए ये वाला ट्रांजिशन है, on 1 you are moving to Q1 and this Q1 is also the final state, ठीक है? और on 2 you are moving to Q2 which is also a final state. So on 2 you are moving to Q2. From Q1 on 1 you are remaining to itself, आप देखिए ये वाला ट्रांजिशन, and on 2 you are moving to Q2, on 2 you are moving to Q2 and Q2 के ट्रांजिशन क्या है, on 2 it is coming to itself, is it? So this has become your NFA. अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही NFA है जो मैंने कल डिजाइन किया था, the same one. तो जब देखिए मैंने इसमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस रिमूव किए, तो सेम NFA I have got. So this is the process by which we can convert an epsilon NFA to the corresponding NFA without epsilon. Is it clear or not, class? Yes sir. Yes, sir. Okay. प्रोसेस सिंपल है, बस केवल ध्यान से करना। एक दो क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए प्रोसेस मुझे थोड़ा सा टीडियस लगता है। मुझे टीडियस इसलिए लगता है क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा NFA था। जब मैंने इसमें आप देखिए पहला Q0 से Q1 वाला एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव किया था, तो एक और एप्सिलॉन ट्रांजिशन Q2 वाला जनरेट हो गया था। और ऐसा होगा, ऐसा हमेशा तब होगा जब भी आप मान लीजिए Q0 से Q1 एप्सिलॉन ट्रांजिशन और Q1 से भी कुछ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस निकलना है, तो हमेशा कुछ नए एप्सिलॉन ट्रांजिशंस Q0 पर जनरेट हो जाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा NFA था, तो बहुत आसानी से हो गया। मगर बड़े NFAs में अगर आप इस तरह से इसको करेंगे तो मल्टीपल एप्सिलॉन ट्रांजिशंस विल गेट जनरेटेड, उसके बाद उसको एक एक करके रिमूव करना, इट मे बी ये टीडियस और बल्कि रेपिटिव है। ऐसा नहीं, आप सावधानी से करेंगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा जो है कहीं गलती होने की संभावना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक और प्रोसेस जो है इवॉल्व किया है। दिस प्रोसेस आई हैव नॉट फाउंड इन एनी बुक, so that I am sharing with you. So if you wish, you can follow that process as well to convert your epsilon NFA to the NFA without epsilon. And इस प्रोसेस में क्या होगा, एक एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन को हम रिमूव करने के बजाय हम
एक स्टेट के जितने भी चेंजेस होने हैं वो सारे के सारे चेंजेस एक साथ कर लेंगे। जैसे Q0 स्टेट में अगर आपने देखा हो, Q0 स्टेट में एक बार Q1 हटाया था तो Q2 आया था, फिर Q2 हटाया था तब कंप्लीट हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, Q1 और Q2 के कोरस्पॉन्डिंग जो चेंजेस होने थे वो चेंजेस एक साथ कर लूंगा। और ये चेंजेस मैं किस वजह से एक साथ कर सकता हूँ, एप्सिलॉन क्लोजर की वजह से। अगर आप ध्यान से देखें तो Q1 के बाद Q2 क्यों जनरेट हुआ, इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि Q0 से एप्सिलॉन पे आप Q1 पे पहुंच सकते थे और Q1 से एप्सिलॉन पे आप Q2 पे पहुंच सकते थे। यानी कि एक तरह से एप्सिलॉन से आप Q0 से Q2 तक पहुंच सकते थे। तो Q2 आपके एप्सिलॉन क्लोजर में था Q0 के। तो यानी कि एक तरह से Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में जो कुछ भी आएगा वो सारे के सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशंस एक एक करके जनरेट होंगे लेवल वाइज। लेकिन अगर मैं उनको एक साथ कंसीडर कर लूं तो एक साथ रिमूव कर सकता हूं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या है, सो नाउ आई विल डू द सेम थिंग बाय एलिमिनेटिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशंस बट थ्रू ई क्लोज। अब मैं एक एक करके नहीं हटाऊंगा, ई क्लोज के थ्रू हटाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहला स्टेप, फॉर ईच स्टेट Q आई विल फाइंड ई क्लोज Q। ये आप फाइंड कर सकते हैं, ई क्लोज फाइंड करना आपने सीख लिया है लास्ट टर्न पे। नाउ एक बार जब आपने ई क्लोज कैलकुलेट कर लिया हर स्टेट का, देन फॉर ईच स्टेट Q copy all the transitions of all the states occurring in E close of Q। यानी कि आप Q स्टेट को जब प्रोसेस कर रहे हैं तो आप देखिए E क्लोज Q में कौन कौन सी स्टेट आ रही है, उन सारी की सारी स्टेट्स के जो भी ट्रांजिशंस हैं वो सारे ट्रांजिशंस आप Q पे कॉपी कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए कि E क्लोज Q में वो स्टेट्स आ रही होंगी जो केवल एप्सिलॉन के थ्रू Q से रीचेबल है। यानी कि अल्टीमेटली आप कैसे भी करेंगे तो Q से उस पर्टिकुलर स्टेट तक एक एप्सिलॉन मूव जो है बन रही होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि जहां भी एप्सिलॉन मूव बन रही है उसके ट्रांजिशन मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। सो मैं क्या करता हूँ कि ई क्लोज Q में जितनी भी मेरी स्टेट्स आ रही हैं उन सारी की सारी स्टेट्स को एक साथ Q पे कॉपी कर देता हूँ। और इसके बाद अगेन फिर देखता हूँ कि ई क्लोज Q अगर कोई फाइनल स्टेट कंटेन कर रहा है तो वी विल मार्क Q ऑल्सो एज द फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अगर E क्लोज Q में मेरी कोई भी फाइनल स्टेट आई तो इसका मतलब Q से फाइनल स्टेट केवल एप्सिलॉन के थ्रू रीचेबल है, इज इट। और जब मैं केवल एप्सिलॉन के थ्रू बिना इनपुट से कुछ लिए फाइनल स्टेट पे पहुंच सकता हूं तो इसका मतलब Q भी मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। सो दैट्स व्हाई आई विल मार्क Q ऑल्सो एज द फाइनल स्टेट। सिमिलरली अगर Q मेरी स्टार्ट स्टेट है तो मेरे ई क्लोज Q में जितनी भी स्टेट आ रही हैं उन सब स्टेट पे मैं बिना इनपुट से कुछ भी लिए पहुंच सकता हूं। यानी कि वहां से अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकता हूं। सो ई क्लोज Q की हर स्टेट स्टार्ट स्टेट होगी अगर Q मेरी स्टार्ट स्टेट है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि इससे मल्टीपल स्टार्ट स्टेट जनरेट होंगी, जबकि हमने अपने एनएफ में मल्टीपल स्टार्ट स्टेट जनरेट नहीं किए। और इस पॉइंट के थ्रू जहां पे हमने ट्रांजिशंस कॉपी किए, ई क्लोज Q वाली स्टेट्स के ट्रांजिशन Q में कॉपी किए हैं, तो वहां से अगर हम जो है स्टार्ट स्टेट को नहीं भी कॉपी करते तो हमारा काम चल सकता है। सो दैट्स वाई इस स्टेप को हम परफॉर्म नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले वाले में नहीं परफॉर्म किया था। इज इट। सो दिस प्रोसेस इज क्लियर। अब इस प्रोसेस को मैं एक बार आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा, इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो अगेन देखिए सेम एप्सिलॉन एनएफए मैंने बनाया, सेम एप्सिलॉन एनएफए की मैंने ट्रांजिशन टेबल बना ली। अब इस ट्रांजिशन टेबल में मुझे क्या करना है, मेरा पहला स्टेप कि मैं ई क्लोज Q फाइंड आउट करूं। मैं क्या करता हूं, ई क्लोज Q फाइंड आउट करता हूं। देखिए Q0 का ई क्लोज क्या होगा, Q0 से एप्सिलॉन पे मैं Q1 पहुंच गया। अब Q सबसे पहले देखिए Q0 तो मैं सेल्फ ऐड करूंगा ही करूंगा। उसके बाद Q0 से एप्सिलॉन के थ्रू Q1 पहुंचा तो मैंने क्या किया, Q1 ऐड किया। अब Q1 तो प्रोसेस हो गई लेकिन Q1 नई स्टेट जनरेट हो गई। अब Q1 नई स्टेट जनरेट होगी तो मैं देखूंगा Q1 से एप्सिलॉन पे कहां पहुंच रहा हूं, Q1 से एप्सिलॉन पे मैं Q2 पे पहुंच रहा हूं। सो Q2 भी मैं यहाँ ऐड कर लूंगा, इज इट। और Q1 मेरा प्रोसेस हो गया लेकिन अब Q2 नई स्टेट जनरेट हो गई। सो अब मैं Q2 को प्रोसेस करूंगा, Q2 से एप्सिलॉन पे कहां जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा। सो यानी कि Q2 भी मैंने पूरा प्रोसेस कर लिया और अब कोई नई स्टेट नहीं है तो मैं अपने ई क्लोज को यहाँ फिनिश कर दूंगा। सो मेरा ई क्लोज जो Q0 के कोरस्पॉन्डिंग आया वो Q0 Q1 Q2 आया। सिमिलरली Q1 के लिए मैं ई क्लोज फाइंड करूंगा, इट विल कम Q1 Q2। ओके, क्योंकि सबसे पहले Q1 ऐड करूंगा, फिर Q1 से एप्सिलॉन क्लोजर पे एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा हूँ, Q2। सो Q2 ऐड करूंगा, फिर Q2 से चूंकि आगे कहीं नहीं मूव कर पा रहा तो इसलिए Q2 पे ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर Q2 को एप्सिलॉन क्लोजर लूंगा तो ओनली Q2 विल बी एडेड, क्योंकि Q2 से आगे एप्सिलॉन पे कहीं नहीं जा सकता। सो ये मैंने ई क्लोज फाइंड कर लिया हर स्टेट का, Q0 का, Q1 का और Q2 का ई क्लोज फाइंड कर लिया। सो पहला स्टेप हमारा
कंप्लीट हो गया, इज इट? सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं। फॉर ईच स्टेट क्यू कॉपी ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ ऑल द स्टेट्स अकरिंग इन ई क्लोज क्यू। ओके, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ बजाय इस टेबल में करने के फटाफट से एक टेबल बना लेता हूँ, स्टेट ओब्लिक सिग्मा। एक बना लेता हूँ 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक बना लेता हूँ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक बना लेता हूँ 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए मैंने एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरा एनएफए का टेबल है, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, विदाउट एप्सिलॉन, इज इट? अब इसमें स्टेट कौन सी होगी? सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी Q0 स्टेट, इट इज द स्टार्ट स्टेट। ओके, अब Q0 ऑन 0, तो मुझे क्या करना है? पहला, फॉर ईच स्टेट क्यू कॉपी ऑल दी ट्रांजिशंस ऑफ ऑल दी स्टेट्स अकरिंग इन ई क्लोज क्यू। तो अब मुझे क्या करना? Q0 देखना, तो ई क्लोज क्यू। ई क्लोज क्यू क्या है? दिस वन, ये मेरा क्या आ गया? ई क्लोज क्यू। तो ई क्लोज क्यू में जितनी भी स्टेट्स हैं, इनके सारे के सारे ट्रांजिशन मुझे Q0 में कॉपी कर देना है। यानी Q0 के ट्रांजिशन भी आएंगे, Q1 के भी आएंगे और Q2 के भी आएंगे। तो अगर मैं 0 पे देखूं तो Q0 का 0 पे तो ये है, Q1 से 0 पे ये है, और Q2 से 0 पे, यानी कि ये तीनों ट्रांजिशन मुझे कॉपी करने, एक तरह से इनको यूनियन कर लूंगा। इनको यूनियन करके क्या आएगा? सिंपल Q0। सो ऑन 0 आई विल रिमेन एट Q0, इज इट? उसके बाद 1 के लिए, तो 1 के लिए Q0 पे तो 5 है, Q1 पे ये है और Q2 पे ये, सबका क्या करूंगा? यूनियन, क्योंकि सारे ट्रांजिशन कॉपी करने हैं, ठीक है? क्योंकि Q0 और Q2 का तो कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, Q1 का ट्रांजिशन, तो वही ट्रांजिशन कॉपी कर दूंगा। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? Q1, इनका यूनियन क्या हो गया? Q1। सो 1 पे Q1, सिमिलरली 2 पे इन सबका यूनियन, Q0, Q1, Q2 सबका यूनियन क्या आएगा? Q2। सो ऑन 2 इट इज Q2, इज इट ओके? देन Q1 के देखिए ट्रांजिशंस। अब इसके बाद ये भी चेक करना है कि Q0 फाइनल स्टेट होगी। अगला स्टेप, हाथ के हाथ अगला स्टेप भी परफॉर्म करते चलिए, पिछली बार हम भूल गए थे, ठीक है? तो अगर मेरा ई क्लोज क्यू किसी भी फाइनल स्टेट को कंटेन कर रहा है, तो Q विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट। अब इसका ई क्लोज क्यू देखता हूँ। ई क्लोज क्यू में Q0, Q1, Q2, Q2 क्या है? फाइनल स्टेट है। क्योंकि इसके अंदर फाइनल स्टेट आ गई, तो मेरा इसका मतलब क्या है? Q0 भी फाइनल स्टेट होगी। सो मैं Q0 को फाइनल स्टेट मार्क कर देता हूँ। अब मैं आ गया Q1 पे। अब Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर देखूंगा। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? ये रहा। इसमें कौन कौन सी स्टेट है? Q1, Q2, यानी Q1 और Q2 के ट्रांजिशंस कॉपी करने हैं Q1 में। सो Q1 Q2 का 0 पे, ये भी 5 है, ये भी 5, कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी क्या होगा? 5 ही होगा, इज इट? 1 पे इसका Q1 है, इसका 5 है, दोनों को मिला करके क्या बना? केवल एक ही ट्रांजिशन आया, Q1। ओके, सो मैंने क्या किया? Q1 को यहाँ कॉपी कर लिया। उसके बाद 2 पे क्या आया? इन दोनों को ऐड करके, Q1 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन Q2 का एक ट्रांजिशन है, तो इसको Q1 पे हमने कॉपी कर दिया, दोनों को मिला के क्या बना? Q2। सो Q2 मेरा इस जगह पर आ गया, इज इट? तो ये हो गया। अब आप देखिए, मुझे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप में क्या है कि मुझे फिर चेक करना है कि ई क्लोज क्यू फाइनल स्टेट कंटेन कर रहा है, तो ई क्लोज क्यू Q1, Q2, Q2 फाइनल स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है? Q1 भी फाइनल स्टेट मार्क होगी। सो Q1 को भी मैंने क्या किया? फाइनल स्टेट मार्क कर दिया। अब आ जाइए Q2 पर, ये तो फाइनल स्टेट है ही, इज इट? ओके, सो अब Q2 के लिए क्या है? ई क्लोज ऑफ क्यू। ई क्लोज ऑफ क्यू क्या है? Q2। तो इसमें कौन से स्टेट के ट्रांजिशन कॉपी होंगे? केवल Q2 के ही ट्रांजिशन कॉपी होंगे, यानी केवल Q2 के जो ट्रांजिशन है वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सो इट इज 5, it is 5 and it is Q2, is it? So now you can see that epsilon transitions मैंने सारे के सारे रिमूव कर लिए। ये मेरा रिजल्टेंट जो है NFA आया विदाउट एप्सिलॉन। अब आप बना करके देख लीजिए वही NFA है कि नहीं है। जस्ट स्टार्ट करिए Q0 स्टार्ट स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट। ऑन 0 it is to itself, on 1 it is to Q1 which is also the final state, on 2 it is on Q2 which is also the final state, Q1 on 0 it is 5, कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन 1 पे to itself, 2 पे it is going to Q2, it is going to Q2, okay, and similarly Q2 के ट्रांजिशन 0 और 1 पे कुछ नहीं है 5, but 2 पर Q2, 2 पे Q2,
So the same result we have got, and I hope this process is simpler, क्योंकि बस इसमें आपको किसका यूज करना है, इसमें आपको ई क्लोज का यूज करना है। पहले एक बार ई क्लोज सारी स्टेट्स का फाइंड आउट कर लीजिए। अब लेकिन दोनों ही प्रोसेस आपके यूजफुल हो सकते हैं। पिछला प्रोसेस आपका कब यूजफुल हो सकता है, जब आपका एप्सिलॉन एनएफए बड़ा है, उसमें एक आध कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन आ रहा है, इज इट, यानी कि बहुत सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए आपको ये प्रोसेस प्रोसेस करना जो है आसान रहेगा। लेकिन अगर आपके मान लीजिए काफी सारे जो है एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं और फर्दर और नए एप्सिलॉन ट्रांजिशन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप एक बार ई क्लोज कैलकुलेट करिए सारी स्टेट्स का और उसका इसको कर लीजिए। जो प्रोसेस आपको आसान लगे उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लास? यस सर। Okay, so we have learned how we can convert an epsilon NFA to an NFA without epsilon, is it? Now we'll be coming to the next point, that is equivalence of epsilon NFA and DFA. Ultimately तो हम अपनी machines को किस में convert करना चाहते हैं, DFA में convert करना चाहते हैं, is it? So DFA में convert करने का देखिए सबसे पहला method तो अभी ये यहाँ जो कुछ लिखा है इसको भूल जाइए। सबसे पहला method तो क्या हो सकता है, epsilon NFA से हम क्या convert करें, epsilon, sorry, just 1 minute, just hold for 1 minute. सबसे पहले तो हम क्या करें, एप्सिलॉन एनएफए से, एप्सिलॉन एनएफए से शुरू किया हमने, एप्सिलॉन एनएफए से हम कन्वर्ट कर लें नॉर्मल एनएफए में, यानी कि एप्सिलॉन हटा लें सारे के सारे। तो हमारा एनएफए हो गया। अब एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस वी नो। सो उसको हम क्या कर लें, डीएफए में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से हम किसी भी एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन एनएफए विदाउट एप्सिलॉन आप नॉर्मल एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अब जो हमने मेथड डिस्कस किया तो उससे हमें एनएफए मिल गया, और हर एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पिछले लेक्चर्स पे डिस्कस कर चुके हैं कि हर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, विच वी कैन फाइंड थ्रू दी सबसेट कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हम डीएफए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है कि एप्सिलॉन एनएफए से हम डीएफए फाइंड कर लें। ये मेथड क्लियर है क्लास? यस सर। इज इट? तो यानी कि एप्सिलॉन एनएफए और डीएफए की जो इक्विवेलेंस है वो हमारी स्टैब्लिश हो गई। अब हम क्या करें कि भाई एप्सिलॉन एनएफए से पहले एनएफए बन रहा है, फिर डीएफए बन रहा है, बजाय इसके एप्सिलॉन एनएफए से सीधे डीएफए बना लें। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, एंड दैट इज द सेम प्रोसेस एज वी हैव परफॉर्म्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। एनएफए से डीएफए के लिए हमने जो प्रोसेस यूज किया था, द सेम process we will be using to convert an epsilon NFA to the corresponding DFA. कुछ difference है थोड़ा सा, तो let us see what the difference is. So suppose we are being given an epsilon NFA E. So अब की बार ये normal NFA नहीं है, ये कैसा NFA है, epsilon NFA. So E is what? QE set of states, sigma जिसपे हमारा input symbols हैं, डेल्टा ई इसका ट्रांजिशन फंक्शन, इसका ई, चूंकि ई का ट्रांजिशन फंक्शन है तो मैंने इसलिए इसको डेल्टा ई करके लिख लिया। Q0E इसकी जो स्टार्ट स्टेट है, सो सर्टेनली दिस Q0E विल बिलोंग टू दिस कैपिटल QE, ओके। और यहाँ से हम अपने ट्रांजिशन स्टार्ट करेंगे। देन FE विल बी ए सबसेट ऑफ दिस QE, सो इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स फॉर दिस एप्सिलॉन NFA E। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है DFA में। सपोज माई DFA इज D। अब इसमें मेरे कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, सो QD विल बी द सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा तो वही रहेगा जो यहाँ था, इज इट? यहाँ एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा डेल्टा डी, चूंकि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है मैंने इसलिए इसको क्या कहा है, डेल्टा डी। और डीएफए की मेरी स्टार्ट स्टेट क्या है, सपोज Q0D, और FD क्या है, ये मेरा डीएफए का सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सो दिस FD विल बी ए सबसेट ऑफ दिस QD, इज इट? अब इसमें सिग्मा तो देखिए मेरे पास है, अगर मैं QD, डेल्टा डी, Q0D और FD ये चार चीजें फाइंड आउट कर लूं तो मेरा जो है DFA बन गया। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन वी यूज इज वेरी क्लोज टू द सबसेट कंस्ट्रक्शन विच वी डिड फॉर कन्वर्टिंग NFA टू DFA, एज द स्टेट्स ऑफ D आर द सबसेट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ E। अब इस QD के एलिमेंट्स क्या होंगे,
QD की जो स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, वो बेसिकली इस QE के सबसेट्स ही तो होंगे, इज इट? यानी सबसे पहली चीज कि मेरा जो QD है, व्हाट दिस QD विल बी, दिस विल बी नथिंग बट 2 to the power QE। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया था कि वहां क्या था, QD वाज 2 to the power Q, वहां NFA में हमने Q माना था, तो 2 to the power Q यानी उसका पावर सेट, जो भी NFA की स्टेट्स हैं उनके पावर सेट, यानी कि QE के सबसेट्स का सेट। तो QE के हर सबसेट QD का एक सिंगल एलिमेंट के बराबर होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है QD, Q0D कि मेरे DFA की स्टार्ट स्टेट क्या होगी। NFA से जब हम DFA कन्वर्ट करते तो स्टार्ट स्टेट क्या होती थी, जो NFA की स्टार्ट स्टेट थी वही DFA, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट होती थी वही हम DFA की स्टार्ट स्टेट बना लेते थे। बट चूंकि यहाँ एप्सिलॉन का भी चक्कर है तो स्टार्ट स्टेट जरूरी नहीं कि सिंगल हो, ओके यानी कि कहने को सिंगल हो सकती है Q0E, दिस इज ए सिंगल स्टार्ट स्टेट, बट इट मे हैव एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब जिन जिन स्टेट्स पे आप एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच सकते हो, ठीक है, सपोज ये x एंड ये y, यानी कि मैं अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग इस Q0E से भी स्टार्ट कर सकता हूं जो कि एक्चुअली इसकी स्टार्ट स्टेट है, लेकिन चूंकि इसके एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं तो इससे x पे भी पहुंच सकता हूं और y पे भी पहुंच सकता हूं, यानी कि चाहूं तो x से भी स्टार्ट कर सकता हूं और y से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मींस x एंड y आर आल्सो द स्टार्ट स्टेट्स, ओके। अब चूंकि DFA में तो एक ही स्टार्ट स्टेट होगी हर हाल में, और वो जितनी भी स्टार्ट स्टेट इसकी हैं एप्सिलॉन NFA की, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, इज इट? तो यानी कि इन सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक हियर E क्लोज ऑफ Q0E। So this part is different from that subset construction। वहां हमने क्या किया था कि जो स्टार्ट स्टेट NFA की थी, बिकॉज दैट वाज आल्सो द सिंगल वन और एप्सिलॉन का कोई चक्कर नहीं था, तो हमारी सिंगल स्टार्ट स्टेट ही थी तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग स्टेट ली थी। बट चूंकि यहाँ हम एप्सिलॉन की वजह से मल्टीपल स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं, सो मल्टीपल स्टेट्स कैन वर्क एज द स्टार्ट स्टेट, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज स्टेट्स which are working as the start state, we will make a state in our DFA which will work as the start state. So Q0D is equal to E close of Q0E. Is it clear, class? Class, it is clear कि Q0D E close of Q0E क्यों होगा? Yes, sir. Okay. Now we come to the next point, that is the FD, कि इसमें फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी मेरे DFA में। सो ये बिल्कुल वैसे ही है, FD इज द सेट ऑफ all states from 2 to the power Q, which 2 to the power QE, 2 to the power QE, ये हमने QE लिया है, which contains any element from F of E, यानी कि इसकी जो फाइनल स्टेट है, जो हमारे NFA की एप्सिलॉन NFA की फाइनल स्टेट है, वो फाइनल स्टेट अगर इसके किसी भी एलिमेंट में अपेयर कर रही है, वो एलिमेंट किसका पार्ट होगा? FD का पार्ट होगा, इज इट? जैसे कि हमारा NFA के केस में था, सो इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो आप देखिए ये प्रीवियस के जैसा है, ये प्रीवियस के जैसा है, केवल ये डिफरेंट है, इज इट? अब उसके बाद आते हैं हम चौथी चीज, तीन चीज हमने फाइंड आउट कर ली, चौथी चीज हमारा क्या है? डेल्टा D, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे निकाल लेते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन हम ऐसे निकाल लेते हैं कि सपोज वी वांट टू फाइंड डेल्टा D S of A, so this S is suppose a state of DFA, okay। अब DFA की स्टेट क्या होंगी? ये इसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि S क्या होगा? S will be something like this, Q0, Q1, Q2 and so on up till QI। Suppose this is my S। So जब हमने वहां फाइंड आउट किया था डेल्टा D S है, तो हमने क्या किया था? It was डेल्टा ऑफ
Q0 on A union delta of Q1 of A union and so on up till delta Qi of A। यही तो था। अब चूंकि यहाँ मेरा ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा ना होकर के क्या है, डेल्टा ई है, तो इसलिए मैं यहाँ के लिख लेता हूँ डेल्टा ई। तो जो भी मेरे एप्सिलॉन एन एफ का ट्रांजिशन फंक्शन है मैं उसको अप्लाई करूंगा उस स्टेट के हर एलिमेंट पे, ठीक है, और उससे मुझे क्या मिलेगा, एक सेट ऑफ स्टेट मिलेगी। सपोज दैट सेट ऑफ स्टेट इज R1 R2 R3 एंड सो ऑन अप टिल Rm। तो पिछली बार मैं यहीं पे स्टॉप हो जाता था। मैं क्या करता था, इस R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rm के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट मेरे पास यहाँ इस पावर सेट में होती थी, मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सिंगल स्टेट बन लेता, तो एक सिंगल स्टेट बन जाती थी और वो स्टेट मेरी क्या हो जाती थी, डीएफए की स्टेट। लेकिन चूंकि यहाँ मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर भी है, कि मैं इस स्टेट पे पहुंचा तो इसका मतलब इसके जो भी एप्सिलॉन क्लोजर यानी R1 से जहां जहां मैं एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच सकता हूँ, R2 से जहां जहां मैं एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच सकता हूँ, सिमिलरली Rm से मैं एप्सिलॉन के थ्रू जहां जहां पहुंच सकता हूं वो सारी स्टेट्स भी मुझे कंसीडर करनी पड़ेंगी। मींस कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एप्सिलॉन क्लोजर और लेना पड़ेगा। सो आई हैव टू टेक इट्स ई क्लोज ऑफ दिस वन, ई क्लोज ऑफ दिस वन। सो अगर मैं इसको थोड़ा और फॉर्मेटेड टर्म्स में लिख लूं तो आई कैन से दैट इट इज द यूनियन ऑफ J is equal to 1 to M E close of R J। ठीक है, यहाँ मेरा क्या आया था, ये सारे R J आए थे, यानी कि मुझे एक तरह से क्या करना है, उसका E क्लोज और लेना है। एक स्टेप ये केवल चेंज हुआ, यानी कि ये जो डेल्टा D का कंस्ट्रक्शन था ये भी बिल्कुल पिछले जैसा ही है, बस केवल एक स्टेप ऐड हो गया कि जब मेरा रिजल्ट आ जाए तो उस रिजल्ट का मुझे क्या लेना है, एप्सिलॉन क्लोजर और लेना है, सीधे से शब्दों। इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये क्लियर हो तो मैं जल्दी से एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसको हम करके देख लेंगे फटाफट। इज इट क्लास? Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। अब देखिए ये मेरा एप्सिलॉन एनएफए है, ठीक है, इसको मैं ट्रांजिशन टेबल लिया इसका मैंने, ठीक है, ये मेरा एप्सिलॉन एनएफए का ट्रांजिशन टेबल बन गया। तो अब जल्दी से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब क्या करना है, इसको जो है डीएफए के टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जब डीएफए के टेबल में मैंने देख लिया कि कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ई क्लोज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं सबका ई क्लोज कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, ई क्लोज कैलकुलेट किया, Q0 का ई क्लोज अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैं इसलिए दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। Q1 का ई क्लोज और Q2 का ई क्लोज, ये ई क्लोज सारे के सारे हमारे पास आ गए। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, डीएफए की टेबल बना लेता हूँ, स्टेट ओब्लिक सिग्मा। डीएफए की टेबल में मेरा क्या है, एक 0 के कोरस्पॉन्डिंग, एक 1 के कोरस्पॉन्डिंग और एक 2 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी स्टार्ट स्टेट क्या होगी, अभी जो मैंने पीछे डिस्कस किया, स्टार्ट स्टेट क्या होगी, मेरी स्टार्ट स्टेट होगी जो इसकी स्टार्ट स्टेट है, जो इस एनएफए की स्टार्ट स्टेट है उसका एप्सिलॉन क्लोजर। इज इट? सो एनएफए की स्टेट Q0, इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0 Q1 Q2। सो मेरी स्टार्ट स्टेट क्या होगी, Q0 Q1 और Q2। तो इसको मैंने एक सिंगल स्टेट बनाया और ये मेरी क्या हो गई, स्टार्ट स्टेट। ये मेरी क्या हो गई, स्टार्ट स्टेट। ओके, अब ये स्टार्ट स्टेट होगी तो अब इस स्टार्ट स्टेट का 0 पे ट्रांजिशन चाहिए, यानी कि Q0 का 0 पे, Q1 का 0 पे और Q2 का 0 पे वो मुझे चाहिए। सो Q0 Q1 Q2 ऑन 0, यानी कि एक तरह से Q0 ऑन 0, Q1 ऑन 0 एंड Q2 ऑन 0। तो मीन्स एक तरह से इस कॉलम का आप यूनियन कर लेंगे। इस कॉलम का यूनियन किया आपने, क्या आया, Q0। इज इट? सो आपके पास क्या है, Q0। लेकिन आपको यहाँ केवल Q0 नहीं लेना है, इस रिजल्ट के बाद आपको उसका एप्सिलॉन क्लोजर भी लेना है। अगर आपका नॉर्मल एनएफए होता तो आप केवल इसका यूनियन करके जो भी रिजल्ट आ रहा था उसको यहाँ पर लिख देते, लेकिन अब Q0 नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है, दैट इज Q0 Q1 Q2। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर Q0 Q1 Q2। इज इट? अब Q0 Q1 Q2 मुझे किस पे चाहिए, 1 पे, यानी Q0 ऑन 1, Q1 ऑन 1 एंड Q2 ऑन 1, और इन सबका यूनियन करके क्या है, Q1। सो अगर नॉर्मल एनएफए होता तो मैं सिंपल यहाँ Q1 लिख देता,
लेकिन अब चूंकि नॉर्मल एनएफए नहीं है तो मुझे क्या लेना है, Q1 जो रिजल्ट आया है इसका एप्सिलॉन क्लोजर। सो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, दिस वन, Q1 Q2। So that's why I will write here Q1 Q2। Similarly Q0 Q1 Q2 on 2 ये चाहिए, यानी कि Q0 on 2, Q1 on 2 एंड Q2 on 2, यानी कि एक तरह से इन सबका यूनियन क्या आएगा, Q2। अब Q2 सिंपल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर। अब Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर केवल Q2 ही है, सो इसीलिए केवल Q2 लिख देंगे। इज इट? कोई नई स्टेट जनरेट हुई? यस। देखिए Q0 Q1 Q2 ये तो ऑलरेडी इधर की तरफ है मेरे पास, Q1 Q2 नहीं है इधर और Q2 नहीं है, तो ये मैं यहां लिख लेता हूं Q1 Q2 और Q2, ये मैंने इधर की तरफ लिख ली। इज इट? अब Q1 Q2 ऑन 0 चाहिए, यानी कि Q1 ऑन 0 Q2 ऑन 0। सो Q1 ऑन 0 इज 5, Q2 ऑन 0 इज 5, दोनों का यूनियन क्या हो गया, 5, और 5 का एप्सिलॉन क्लोजर भी क्या होगा, 5 ही होगा। इज इट? सो 5 का तो सब कुछ 5 होता है, सो इट इज 5। दिस इज द स्टेट। अब Q1 Q2 ऑन 1, सो Q1 ऑन 1 Q2 ऑन 1, इन दोनों का यूनियन क्या आ गया, Q1। तो Q1 नहीं लिखेंगे, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर। ओके, सो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2। इज इट? अब Q1 Q2 ऑन 2, सो Q1 ऑन 2, दिस वन, एंड Q2 ऑन 2, और इनका यूनियन, इनका यूनियन मीन्स Q2, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर दैट इज आल्सो Q2, दिस इज Q2। कोई नई स्टेट जनरेट हुई? यस, this phi has been generated, so this phi I will be writing here। is it? अब Q2 का देखिए, Q2 का 0 पे, so Q2 0 is phi, so I will be writing phi here। phi है तो phi का एप्सिलॉन क्लोजर भी phi होगा, इसलिए phi में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Q2 on 1 चाहिए, so यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, Q2 on 1 that is also phi, so it is also phi, phi का क्लोजर भी, एप्सिलॉन क्लोजर भी phi। Now Q2 on 2 चाहिए मुझे, so Q2 on 2 is Q2, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर is also Q2, that's why I will write Q2 here। is it? और phi के सारे ट्रांजिशंस क्या होंगे, वो तो phi होंगे ही होंगे। is it? so इस तरह से मुझे क्या मिल गया, ये मेरे DFA की टेबल मिल गई। अब इसमें एक चीज रह गई, फाइनल स्टेट्स। अब इसकी फाइनल स्टेट क्या है, NFA की Q2। तो Q2 इसमें जिस जिस भी स्टेट में आ रहा है वो सारी स्टेट क्या होंगी, फाइनल स्टेट। देखिए इसमें भी Q2 आ रहा है, सो दिस विल बी द फाइनल स्टेट। इसमें भी Q2 आ रहा है, सो दिस विल बी द फाइनल स्टेट। इसमें भी Q2 आ रहा है, तो दिस विल बी द फाइनल स्टेट। केवल ये नॉन फाइनल स्टेट होगी। अब इसको अगर आप DFA के फॉर्म में बनाए जल्दी से, तो देखिए Q0 Q1 Q2, so this is the state, this is the start state as well as your final state। इसका 0 पे ट्रांजिशन टू itself, 1 पे ट्रांजिशन Q1 Q2, and this Q1 Q2 is final state also। okay, इसी तरह से ये आपका Q2 आ गया, और Q2 भी ये आपकी क्या है, दिस इज ऑल्सो दी फाइनल स्टेट। ओके, सो ऑन 1 इट इज गोइंग टू Q1 Q2, ऑन 2 इट इज गोइंग टू Q2, सो ऑन 2 इट इज गोइंग टू Q2। इज इट? अब Q1 Q2 के 0 पे तो phi है, सो 0 पे phi आ गया। phi का 0 1 2 तीनों पे ट्रांजिशन क्या था, phi ही था, और Q1 Q2 का 1 पर टू itself, सो 1 पे itself, और 2 पे Q2, 2 पे Q2। इज इट? और Q2 का देखिए 0 और 1 पे phi, और 2 पे Q2 itself, तो 2 पे तो Q2 itself, और 0 और 1 पे phi। इज इट? तो आप देखिए ये इसका DFA है, और आप ध्यान से देखें तो द सेम DFA वी हैव डिजाइन जब हमने इसका DFA डिजाइन किया। ठीक है, अगर NFA बनाना होगा तो केवल ये वाली जो पोर्शन है, ये पोर्शन हट जाएगा NFA का, बाकी सब कुछ आपका NFA का पार्ट है। ठीक है, और एप्सिलॉन NFA ये हमने यहाँ दिखाई रखा है। सो थ्रू दिस एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट डू वी मीन बाई
how we can design the epsilon NFAs, how epsilon moves can be removed to convert an epsilon NFA to the normal NFA, and how we can convert epsilon NFA directly to the DFA. I hope it is clear to everyone. Class, if you have any doubt, you can ask, otherwise we will close here. Class, is there any doubt? If there is no doubt, sir. we can. No, Okay. sir. No, sir. So now we are closing here. Thank you all.